and welcome to this special show from Ayodhya. The excitement is back in this holy city of Ram with Pran Pratishtha 2.0. This time it will be Lord Ram who will be consecrated in his majestic darbar. While Ram Lala is on the ground floor, Lord Ram will be on the first floor of the temple. With Ram Darbar, there are 7 more deity temples where the divine is being invoked through the rituals. Faith and devotion binds one and all. We bring you some ground reports. कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी ना तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी This is the excitement, this is the festivity. You see this crowd reaching here like any other morning at the Ram temple. But most of them know that the consecration ceremonies are on inside. The rituals have started and they need to wait because 5th June will be the day when the Raja Ram will be consecrated, and that's the day after which the trust is going to decide when is it going to open for the regular pilgrims and devotees. So quite a number of people coming here, and since last 15 months around 80,000 to 1 lakh pilgrims per day reach this Ram temple, which is not only a temple but also a center for religious and cultural awakening throughout the world. And we have few more सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो. आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं. अरे दिल्ली से आई हैं और प्राण प्रतिष्ठा चल रही है राजा राम की. राम दरबार खुलने वाला है कुछ दिनों में. अच्छा अच्छा, बहुत. आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी. आप पहली बार आई हैं? हम पहली बार आए हैं. अच्छा. हाँ, तो दर्शन हो चुके हैं या फिर? दर्शन हो चुके हैं. तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर राम दरबार होगा और बाकी और मंदिर हैं जैसे शिव जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, वो भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. तो वो देखने का मौका मिल पाया अंदर जब आप अंदर गई? ना, अंदर वो नहीं देखने का मिल पाया. जो नहीं देखने. तो आप लोग सिर्फ रामलला के दर्शन करके? हाँ. 5th June is the day when the final consecration ceremony will take place around 11:30 a.m. That's when the Uttar Pradesh Chief Minister is going to arrive here, and in his presence the consecration ceremony will happen. It will be live streamed for people to watch. While the rituals are still on, the live streaming is not on, so we don't have a very good idea about what's happening, but we have been told that the yagya and the home is on inside, and the deities have been purified with the sacred water which was carried through the Kalash Yatra yesterday evening by the women to this temple complex, and now the rituals have taken off, and the next 2 days are pretty crucial. 6:30 a.m. to 6:30 p.m. is the time for today and tomorrow where the rituals will be taking place. And 5th June, Ganga Dashera, the day which is celebrated as the day when the river Ganga descended on earth. So that's a very auspicious day and an auspicious time for the consecration, and that's when the Ram Darbar, Lord Ram, will be consecrated with the other deities. The spiritual, the divine will be invoked in the idols, and that's what people are reaching here for, and they're waiting for the doors to open for the Ram Darbar. Pran Pratishtha 2.0 is another landmark in the spiritual and the religious journey of Ayodhya, and with me here are a few pilgrims who have come from far for this darshan. Do you know there's Pran Pratishtha rituals on inside the temple? Yeah, I know. 5th June को फ्रेंकली स्पीकिंग हमें पता नहीं था, बट वी हैव अ फ्लाइट ऑन 3rd जून. अगर पता होता तो कैंसिल करके मतलब उसको हम पोस्टपोन करके 5 जून को कर देते हैं. So you're carrying baby Krishna to meet the baby Ram? yes and he was very happy to meet. So is this your first trip to Ayodhya? Yes. So what's so special? What brings you here? एक्चुअली हम विज़िट करने वाले थे अयोध्या, देन हनुमानगढ़ी. फर्स्ट हमने वहाँ पे सरयू नदी में स्नान किया, देन यहाँ पे डायरेक्टली आ गए.
अब क्योंकि राम दरबार खुल रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो फिर आना होगा आप लोगों का। ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर साल आऊँ और अपने कान्हा जी को भी लेके विजिट में फिर आएंगे। फिर आएंगे, लेकिन 5 जून को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ा इंतज़ार जो आम श्रद्धालु उनको करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर तुरंत नहीं खुलने वाले राम दरबार के। तो ऐसे में आप लोग फिर आएँ और दर्शन करें। आप लोग कहाँ से आई हैं? बीकानेर राजस्थान। राजस्थान पहली बार आई हैं? पहली बार। क्या अच्छा लगा यहाँ पे? सबसे दर्शन हो गए आपके? बहुत अच्छा दर्शन हुआ, इतनी अच्छी व्यवस्था। किस शब्दों में मतलब मोदी जी का धन्यवाद करें। आपको मालूम है कि आप लोग रामलला के मंदिर गए, उसके ठीक ऊपर राम दरबार सज रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होने को है अब 5 तारीख को है। कुछ देख पाई? हाँ। कोशिश की? बोले अभी टाइम नहीं, थोड़ा भीड़ है ना, सब कोई दर्शन होना चाहिए, अच्छी बात है। तो ऊपर राम दरबार बंद है अभी? आप लोग ऊपर जा पाए? नहीं। आप लोग अंदर से आ रहे हैं? नहीं, हम लोग आ रहे हैं हनुमानगढ़ी से आ रहे हैं, अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, कोशिश रहेगी कि राम दरबार के भी दर्शन हो जाए। हम लोग मुंबई से आए, फर्स्ट टाइम आए। मुझे लग रहा है यहाँ पे मुंबई से हाँ? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं हम लोग भी तो फर्स्ट टाइम आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है यहाँ पर अंदर राजा राम की। बेबी राम के बाद राजा राम, तो कोशिश रहेगी कि वो कैसे दिखते हैं, उनका भी स्वरूप आपको देखने को मिले। यस यस। वो तो मनोकामना है मन में। वैसे हम लोग के अंदर भी राम विराजे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार अगर दर्शन का मौका नहीं मिला राम दरबार का तो फिर आएंगे आप लोग? मिलेगा, मुझे विश्वास है। मिलेगा, मन में विश्वास है, जरूर मिलेगा। चाहे तो बरोबर मिलता है। हाँ, मिलता ही है। मन में खाली उसका ध्यान करना है, जब करना है तो पक्का मिलेगा, हमको भरोसा है। Well, that's the belief and the faith with which these regular devotees are reaching to the temple complex. They'll have to wait post 5th June for the Ram Darbar Darshan. The religious and the Vedic rituals are on inside the temple complex of Ram Mandir in Ayodhya, while the devotees are reaching the temple for Ram Lala's darshan, though the doors are still closed for the Ram Darbar, but unprecedented arrangements have been made for security. With me is Ayodhya's SSP, Dr. Varun Grover. Thank you for speaking with NDTV. Dr. Grover, what kind of arrangements, security arrangements this time for Pran Pratishtha 2.0? As we know, on 5th of June, the Pran Pratishtha program is planned, and the events have already started from yesterday onwards. All the security arrangements for the temple complex area and around in the yellow zone with the district administration and the district police. We have visited all the sites wherever the events are going to take place, plus all the VIP visits and the devotees who come here from all parts of the country and abroad. The security of all the visitors to Ayodhya is being promised, and we are making all the arrangements. Apart from that, all the equipments, all the security gadgets that are already in place, all the standard operating procedures for the security forces that are already in place are being revisited, and we are making all the arrangements for a secure event in the next coming days. So, how many people are you expecting in Ayodhya for 5th of June? The event that is going to take place in the temple complex is the list has already been shared by the trust, and apart from that, the inflow of devotees that takes place on the regular basis, we are keeping everything in mind and making all the arrangements accordingly. So the trust has been appealing to the devotees and the pilgrims, like don't come here and in huge numbers because the arrangements are not so much, and because of the weather they should avoid coming here. But are you all still expecting the inflow of pilgrims to be more than the usual, which is around 80,000 to 1 lakh per day? Every day, a lot of devotees, around 1 lakh devotees, come to Ayodhya for Mandir Darshan and visit of other religious places. We are making arrangements on a daily basis, and on special events we are ready for all these situations. Devotees who come here and the VIP visits that are expected in the next few days, we have made all the arrangements accordingly. One last question. Comparing what was planned for last year, 15 months back, and today,
Is there a different the kind of arrangements the police department has made and the administration has made? Certainly all the standard operating procedures for all the major events that happen in Ayodhya and for all the situations that may come across, we have the arrangements for security, and all the other arrangements at the level of the administration are being made with consultations with the trust and other stakeholders. We are ready for all the events that are going to happen in the next few days. श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है ये तय किया गया था कि राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्रथम तल पर जो है प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। प्रातः 6:30 बजे से ही पूज्य संत धर्माचार्य, उसमें जगत गुरु वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष मठ के, इसके अलावा जो है युग पुरुष स्वामी परमानंद जी जो प्रारंभ काल से आंदोलन से जुड़े रहे और श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनके अलावा जो है गोविंद देव गिरी जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, वो हैं। ऐसे संतों के बीच में जो है ये कार्यक्रम आज वहाँ पर पंचांग पूजन से लेकर जो है मंडप पूजन के उपरांत जो है अग्निमंथन किया गया, और अग्निमंथन के बाद वहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ठीक ये 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। साथ ही अब जो है 2 बजे के उपरांत जो है बहुजन अवकाश हुआ है, उसके बाद फिर से यह इसी क्रम में सायंकाल तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा, और 4 जून को भी यही नित्य कार्यक्रम इसी प्रकार से चलेगा। 5 जून को जो है प्रातः 6:30 बजे से लेकर जो है 1 बजे के बीच में समस्त जो है प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हो जाएंगी, और उनके प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है इस प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे संत धर्माचार्य और ट्रस्ट के जितने भी पदाधिकारी वहां पर उपस्थित हैं, वो सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे। We are at Ayodhya's Hanuman Gadi, and from here the IPL final is also being watched, and the only reason is cricketer Virat Kohli with his wife Anushka Sharma had visited Hanuman Gadi to take blessings from the Mahant here. Mahant Sanjay Das ji is with us. Mahant ji, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बताइए कि क्रिकेट पर चर्चा हुई थी, सुर्खियां बनी थी, आप तस्वीरों में हमने देखा विराट कोहली यहाँ आए आशीर्वाद लेने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन आज फाइनल मुकाबला है। क्रिकेट पर आपकी भी नज़र है यहाँ पर हनुमानगढ़ी? बिल्कुल जो है ये विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी आए थे, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिए थे, क्योंकि अयोध्या के राजा हनुमान जी हैं और इनका आशीर्वाद लिए तो निश्चित है विजय निश्चित है होगी, और भगवान राम लला का भी साथ साथ आशीर्वाद लिए थे। और जैसा कि क्रिकेट के क्षेत्र में हर किसी जन जन में क्रिकेट व्याप्त है और हर कोई देखना चाहता है, तो आईपीएल का ये फाइनल मैच है और आरसीबी और पंजाब के बीच में, तो निश्चित है जो है कोहली जी आए थे और हनुमान जी का आशीर्वाद लिए थे, तो ये निश्चित है कि जो है हनुमान जी उन्हें विजय दिलाएंगे। ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मांगा था? बिल्कुल आशीर्वाद उन्होंने मांगा था, तो इसीलिए तो आशीर्वाद दिया गया कि आप जीतोगे, और फाइनल में वो आ गए, और इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और लास्ट फाइनल पंजाब के साथ है, तो निश्चित है विजय उन्हें हासिल होगी। और क्या वादा या प्रॉमिस करके गए, जीतेंगे तो लौटेंगे एक बार फिर भगवान के दरबार में? बिल्कुल जो है वो जीतेंगे तो निश्चित है वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था जरूर जो है हम जीतेंगे, जरूर आएंगे। Ayodhya has become the largest tourist hub in the recent times. 15 months on, has life changed for the locals here? Let's find out. भैया आपकी ये दुकान है, 15 महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और लोगों की जो तादाद है, श्रद्धालुओं की तादाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। आपके लिए क्या बदला इन 15 महीनों में? मैडम पहले आज के 15 महीनों के पहले जब यहाँ मंदिर नहीं बना था तो यहाँ क्या कुछ था, यहाँ कुछ नहीं था। जैसा गांव होता है वैसा पब्लिक 1-2 आता था, और दर्शन के लिए भी 1 घंटे खुलता रहता था, वो भी बैरिकेटिंग के अंदर था, पुलिस वगैरह का प्रशासन के अंदर में, रामलला टेंट के अंदर में थे। अभी मोदी जी ने ये मंदिर बनवाया, भव्य उद्घाटन किया इसका। आपका बिजनेस चल पड़ा है? अभी तो यहाँ 100-200 कमाता था, अभी 10,000 12,000 में एक दिन में कमा रहा हूँ डेली का। अरे वाह, तो ये फर्क आया आपकी जिंदगी में? पहले 200-300 कमाता था, अभी 10,000 डेली का कमा रहा हूँ मैं। तो 15 महीनों में जिंदगी बदली है? जी जिंदगी तो वैसे ही बदली है।
बेहतर हुई है जिंदगी? हाँ बेहतर है। पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ वो कमाते हैं पैसा कमा पा रहे हैं। तो आपके मुताबिक ये जो अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो आपको लगता है इससे और ज़्यादा बिजनेस बेटर होगा? अभी देखिए वो तो आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो 5 तारीख को योगी जी आएंगे, उनका जन्मदिन भी है और सीता माता को विराजमान करेंगे। अभी आगे का कुछ तो कहा नहीं जा रहा है। अभी क्या है ना कि आप खुश है ना? वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। 15 महीनों में तकदीर बदली है कुछ लोगों की। आप वो कह रहे हैं बेटर बिजनेस मिल रहा है उनको 15 महीनों में। आप क्या क्या बेचते हैं, आप दिखाइए ज़रा, और आपके बिजनेस कितना बड़ा है? हम बिजनेस तो बहुत बड़ा है मैडम। ये हमारे यहाँ राम दरबार की मूर्ति है, ये पीतल की है। ठीक है, आपने राम दरबार पहले ही बना लिया? राम दरबार ये ज़्यादा बिकते हैं, लोग जो है परिवार ले जाते हैं, परिवार से शांति मिलती है, ऐसा है ना। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 5 तारीख को, तो आपको लगता है ये और बिकेगा? और बिकेगा, ये प्रभु जी की माया है। जब से दुकान लगाना शुरू किया तब फिर लगा रहे हैं। अब कमाई अच्छी हो रही है? जी मैडम, कमाई अच्छी रहेगी, मगर जब तक दुकान हमको मिली रहेगी तब तक लगाएंगे, जब नहीं मिलेगा तो खाली करके चले जाएंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि कमाई अच्छी होगी। सो वेल, दैट्स द फीडबैक वी आर गेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अयोध्या. The common man, the locals who are doing small business, their life has really changed. आपके लिए जिंदगी बदली? क्या बेचती हैं आप? इसमें मूर्ति रामलला की बेच रहे हैं। कब से बेच रही हैं? ये हम लोग यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही हैं। तब से आए हैं, तो बहुत खरीदारी हो रही है यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं? बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत खुशी है। ये बताइए, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? रामलला की मूर्ति, राम दरबार। अब तो 5 तारीख के बाद से राम दरबार की डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। राम दरबार की डिमांड बढ़ेगी। सो पीपल आर हैप्पी, द स्मॉल बिजनेस traders are happy that last 15 months have been really a boon for them. आप लोग कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं। और पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आ रहे हैं? हाँ, पहली बार। तो क्या अच्छा लगा यहाँ पे? सब अच्छा ही लगा, ठीक है। आप पहले कभी अयोध्या नहीं आए थे? नहीं आए थे। कहा जा रहा है कि अयोध्या की जो तस्वीर है, तकदीर है, वो बदल गई है 15 महीनों में। आपको लगता है बहुत विकास हुआ है? बदला हुआ है, क्या फर्क देख रहे हैं आप? हम जिस समय आए थे पिछले साल फरवरी में एक बार आए थे उद्घाटन के समय में, और अब में अभी थोड़ा चेंजिंग हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुई है। आपके लिए क्या बदला? बहुत खुश है बड़ा। आप लोकल हैं या बाहर से आए? बिहार से। बिहार से आए हैं? हाँ। पहले आए हैं अयोध्या? नहीं। क्या अच्छा लग रहा है अयोध्या के बारे में? सोच रहे थे जब राम मंदिर का स्थापना होना था तो ट्रेन ही बंद हो गया तो नहीं आ पाए, तो उसी तो आए तो देखे तो बहुत अच्छा लगा। So the pilgrims here, the devotees here are really enjoying the moment here, but there are other small businesses which have thrived since last 15 months. आप चूड़ियाँ और श्रृंगार बेचती हैं, ये कब से बेच रही हैं? 6 महीना हो गया मैडम। 6 महीने से? बहुत कुछ बदला। आप पहले क्या करती थी? पहले हम लोग गांव में रहते थे, नवादा जिला मेरा घर हुआ, तो यहाँ मतलब कि आए दिसंबर से काम कर रहे हैं। तो मंदिर की वजह से आपका जो कमाई का जरिया बना है, आप पैसा कमा पा रही हैं यहाँ पर अयोध्या आकर? बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, भगवान का कृपा हुआ तो यहाँ हम आए और उनका कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। तो घर चलाने भर के लिए कमा लेती हैं या उससे ज़्यादा ही? ठीक नहीं, घर चलाने भर तो अभी चल रहा है। अभी थोड़ा सा मतलब बाजार डाउन, भीड़ भाड़ के वजह से थोड़ा सा मार्केट कम हुआ, तो थोड़ा सा इनकम कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं रहा। लेकिन भगवान चाहे तो फिर से जितना कमाई उतना ही हो जाएगा। तो 5 तारीख को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है, तो बिजनेस और बढ़ेगा? बिजनेस स्वाभाविक सी बात है, जब राम जी का कोई ना कोई कार्यक्रम होगा तब लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो हम लोगों के व्यापार बढ़ेगा, कमाई और बढ़ जाएगी। भाई कमाई जैसे लोगों का आवागमन बढ़ेगा वैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। हम तो ये चाहते हैं, हम तो उनका हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार है। अतिथि देव भव, जितने लोग यहाँ आएंगे उतना हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा। हम लोग चाहते हैं यहाँ कोई ना कोई मतलब कि कुछ अच्छा होते रहे, तो महीने में कार्यक्रम होते रहे। जैसे 2-4 कार्यक्रम बन गए, एक हमारा। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि मंदिर कार्यक्रम करता रहे? हाँ, बराबर, और करता रहेगा, क्योंकि हमारा दीप उत्सव दिए, एक भव्य कार्यक्रम दीप उत्सव आया, फिर रामनवमी का मेला आता है, नवरात्रि के मेले में मतलब दिन ब दिन लोगों का आने का आकर्षण का केंद्र बन रहा है अयोध्या।
So the Ram Mandir has life-changing experiences for the local here. Let's ask some more people. What changes have they seen in last 15 months? आप प्रसाद की दुकान चला रहे हैं, 15 महीनों में क्या डिमांड बढ़ी है? खाना बढ़ाया गया है 15 महीने के अंदर। खाना बढ़ गया? कितना? बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे? अरे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम हो ही रहा है। पैसे अच्छा कमा लेते हैं आप? अच्छा कहाँ कमा पाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो कमा लेते हैं। परिवार जी पहले से बेहतर हुई है? परिवार जी आ लेते हैं, थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। जो डिमांड है पहले से बेहतर हुई है 15 महीनों में, पिछली प्राण प्रतिष्ठा से आज तक? हाँ, कुछ न कुछ तो होता है। हाँ, बेटर हुआ है? हाँ हुआ है। कमाई बेटर हुई है? हाँ, कमाई बेटर बढ़ गए हैं। पहले 2 रहते थे, अब 4 हो गए। काम करने वाले। हाँ, करवाने वाली हैं। तो बिजनेस बड़ा है आपका? पहले से तो बढ़ा है, काफ़ी बड़ा। कब से बढ़ा? पिछली प्राण प्रतिष्ठा से आज तक में कितना फर्क आपने देखा अपने बिजनेस? प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो काफ़ी बढ़ा था, इधर थोड़ा बीच में लो हो गया था। अब उम्मीद है कि फिर से हो गई अच्छी सेल। खाने पीने की भी डिमांड बढ़ रही है, चीज़ों की डिमांड हमने देखा बढ़ रही है, तो खाने पीने रेस्टोरेंट में डिमांड बढ़ रही है? पहले की अपेक्षा तो बहुत बढ़ रही है। अब लोगों को अलग अलग वैरायटी, जैसे पहले अयोध्या में कुछ भी नहीं था, अब राम जी की कृपा से बहुत कुछ है। आपको लगता है जो प्राण प्रतिष्ठा 2.0 जिसे हम कह रहे हैं, राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 5 तारीख को ये पूर्ण हो जाएगी, तो इससे और ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है आपके काम को? मिलना तो चाहिए, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहती है कि और अच्छा होगा तो फिर से चलेंगे वापसी, फिर से घूम के आएंगे राम जी के। जैसे सभी जगह है दर्शन तीर्थ यात्रा में जो लोग जाते रहते हैं, तो वैसे उम्मीद है कि राम जी के पास भी बार बार लोग आएंगे। राम जी के पास बार बार लोग आएंगे और आपका बिजनेस और बढ़ता जाएगा। भाई राम जी के पास आएंगे तो हमारा भी बढ़ेगा ही। बेस्ट विशेस आपके बिजनेस के लिए। और लाइक यू कैन सी it's the Ram temple here is not only giving a big boost to the faith, the emotions, it's also boosting the local economy around the Ram temple. With cameraman Rajesh Gupta, this is Sikta Deo for NDTV in Ayodhya.